Everyone is requested to turn on their cameras. So, hello everyone. My name is Justice, and I'm your English trainer. Today we are uh, diving in another session over the concept building stuff. Yesterday we talked over there versus it, and I gave you the homework. So let us see that how you have done and what will be the correct answers for those statements which have been given yesterday. So the task one we had already done. You've been given for the home that was from task two, right? So this was given as homework. So we'll be doing this. You can match that what you have done, and those who haven't shared the homework, they can write in comment section. And those who have done as well, they can also share their um, over here. So task two, complete the sentence with its or its. Both are having the same pronunciation, but the usage for both would be different, right? It's first it is, and second it is possessive of it, right? So first one is already done for you. Come on, let's go home. It's getting late. It means it is getting late, right? Second, I am taking my umbrella because tell me what will be the correct answer here. So those who have done um it is it uh apostrophe S, that is correct because here it is raining. It's raining. It means बारिश हो रही है, right? And next, the horse had a white star on. घोड़े के ऊपर क्या है? White star on किसके ऊपर? माथे पर. माथे पर क्या है? White star. Okay, something is there on the forehead of the horse. So here we'll be using possessive it's or apostrophe one. Tell me. Possessive means किसी पर होना. Just for example, when we are talking about the personalities, personal pronouns I along with I, my, and along with he, his, like she, her, we, our, and you, your. Okay, so like this. So in this is animal. So here we can use it's. It's can be used for neuter stuff like neuter gender or even in the stuff when we are talking about um, animals or other living beings rather than the human. And when those living beings are not personalized, for example, sometimes what happens when you are having a pet, you consider it as your family. So there you use what? Like I have a dog, his name is Tommy. You do not say its name is Tom because you are having personal relationship with that dog, right? Because you are considering that dog part of your family. Yes, sometimes. So that can be also used he, she, his, her. Yes, that is another case. But generally, in neutral case, like when there is we are they're confused, like there is no sign of having a person like he is or she is, then that in that case also we can use it. जो है पता ना हो कि वो he है या she है, वहां पर भी इट कर सकते हैं. एंड अनदर केस नॉन लिविंग स्टफ हो तो वहां इट का यूज करेंगे ही करेंगे. एंड दिस केस विच इज हियर, जब एनिमल्स हो, पर्सनलाइज नहीं है ना, पर्सोनिफाइड नहीं किया गया है, तो आप उनके लिए इट्स का यूज करते हैं. ठीक है, पर्सोनिफाई करने के बाद, मानवीकृत करने के बाद आप उसको वहां पर ले सकते हैं. ही, शी, हिज, हर. ठीक है, तो यहाँ पर आई एम द हॉर्स हैड अ वाइट स्टार ऑन इट्स फॉरहेड. दैट्स करेक्ट. यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. ई आई टी एस इट्स possessive it's. ठीक है, सेकंड वाला इट्स आएगा. फोर्थ, the school at the end of my road has given. Now now tell me, it is वाला it's आएगा यहाँ पर या फिर it's? फिर से possessive वाला it is वाला it's. First one, second one, let me know. Write in comment section fast everyone. School at the end of my road has given students a holiday on Friday. Yes, that's correct. You're writing well. It's, ये possessive वाला है. केवल दो लोग आंसर ही कर रहे हैं यहाँ पे. Where are rest of you? Yes, आरोही जी, that's incorrect. It is वाला it's कैसे आ जाएगा यहाँ पर?
यहाँ स्कूल के बारे में बात हो रही है, तो स्कूल अपना अपना के अर्थ में आ रहा है ना। द स्कूल एट द एंड ऑफ रोड हैज गिवन इट्स स्टूडेंट, अपने बच्चों को या फिर इसके बच्चों को, स्कूल के जो बच्चे हैं उनके बारे में बात हो रही है, स्टूडेंट छात्रों को, अ हॉलीडे ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट, फिफ्थ, टाइम टू, व्हाट विल बी यूज्ड हियर? टाइम टू गो नाउ, इट्स टाइम टू गो नाउ, कौन सा वाला इट्स आएगा? इट्स टाइम टू गो नाउ। I told you, like, it can also be used for date, time, events, right? And I also told you it is used for adjectives, right? So here, of course, you are doing well. It is time to go now. अभी समय है जाने का. Right. Next, it's the moment for go to go now. Like this. Sixth one, my cat has broken one of. Now tell me, मेरे कैट ने अपने ब्लैक लेग्स में से एक तोड़ लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यस, दैट्स करेक्ट, इट्स इज करेक्ट आंसर हियर। ITS वाला इट्स आएगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। ठीक है, पोसेसिव है यहाँ पर। सेवंथ है आपका, गुड टू स्टडी, ये एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव में क्या बताया था हमने? whenever we are using adjective, you must know कि अब पहली बार बिगनिंग के जस्ट बाद है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स एडजेक्टिव के साथ हम लगाते हैं उसका, बट यहाँ पे कौन सा हिट आएगा? नो, रमेश जी, दैट्स इनकरेक्ट। यहाँ पर भी इट, अपोस्ट्रोफी एस, इट इज गुड टू स्टडी, इट्स गुड टू स्टडी अ वीक बिफोर एन एग्जाम। ऐसा कोई कह रहा है कि ये बहुत अच्छा है कि आप एक सप्ताह पहले पढ़ें एग्जाम से। Okay. So adjective good is used here. So that's the reason we will be using it is. Okay. And it's क्यों नहीं आया? It's इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेशन तो शो हो नहीं रहा है कि इट्स गुड, इसका गुड कैसे बोल सकते हैं? इसका अच्छा है। ओके, सो दिस इज इट। नेक्स्ट हम कर लेते हैं टास्क 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 3। टेल मी फास्ट, फर्स्ट वन, व्हाट विल बी द आंसर? देयर और इट? देयर वर्सेस इट? It is or there is the 18th of October. What will be used here? Yes. Primesh, you're writing there. Can you tell me the reason why are you using there? Yes, there can be used for existence or non-existence. Something exists or something doesn't exist. But why are you using there? I already told you, like, whenever we are talking about event date, we generally use what it, rather than it is termed in the way of something which is existing. Right? तो यहाँ पर आपका देयर तो रॉन्ग है, यहाँ डेट आएगा क्योंकि ये ऑफकोर्स डेट की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ बताएंगे सेकंड वाले में, इट इज नथिंग टू इट और देयर इज नथिंग टू इट, विच वन इज करेक्ट? कुछ नहीं है खाने को, व्हाट विल बी द आंसर? यस, वेल डन, यू आर यूजिंग इट वेल। देयर इज नथिंग टू इट मतलब खाने के लिए कोई एग्जिस्ट तो है ही नहीं, मतलब अब वही बात होगी ना, एग्जिस्ट नहीं कर रहा कुछ। एग्जिस्ट का मतलब ये नहीं कि मतलब अपने अस्तित्व पूरी खाना ही नहीं है धरती पे, मतलब आपके पास प्रेजेंट, राइट, प्रेजेंस नहीं है उसकी, मतलब अभी खाने को कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू इट, कुछ खाने को नहीं है, राइट। नाउ थर्ड, हु इज एट द डोर, कौन है दरवाजे पर, ये भी बताया था ये। यस, देयर इज मी या इट इज मी? इफ यू रिमेंबर यस्टरडेज क्लास, यू कैन यूज देयर इज मी या फिर इट इज मी। मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग इट, लेट मी नो, देयर इज मी और इट इज। वेल डन, यस, इट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इट आ जाएगा, इट इज मी। हमने बताया था ना, किसी पर्सन अपने बारे में या किसी दूसरे के व्यक्ति के बारे में बताने के लिए भी इट का यूज करते हैं, रेफरिंग टू द पर्सनालिटीज। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, इट इज अ वेरी गुड रेस्टोरेंट नॉट far from my house, or there is a very good restaurant not far from my house, let me know. Remember, here we have used an adjective, gee,
Some of you are using it, some of you are using there. Let's see which will be correct. Here, adjective is also used where very good, right? Okay. Now let me help you with answers. So listen to me. Adjective is used here, but we also know there is something which exists far from my house. तो यहाँ तो दोनों बातें होंगी भाई. यहाँ तो फिर एडजेक्टिव भी दिख रहा है और एग्जिस्टेंस भी दिख रहा है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. तो जहां पर हमने बात की कि इसका हिंदी दे देते हैं कि एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, है ना. एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जो हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है. तो आप मुझे जरा सोच के बताइएगा, ठीक है, एडजेक्टिव आया है, ठीक है. तो यहाँ पर हम एम्फोसाइज किस पे कर रहे हैं? हम यहाँ पर एग्जिस्टेंस पे एम्फोसाइज कर रहे हैं या फिर हम एडजेक्टिव पे एम्फोसाइज कर रहे हैं? सोचिए समझिए, फिर उसके हिसाब से प्रायोरिटी आप डिसाइड कर सकते हैं. एग्जिस्टेंस पर एम्फोसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं इसमें, या फिर हम यहाँ पर एडजेक्टिव पर जोर दे रहे हैं? जल्दी से बताएंगे. दीपमाला जी लिख रही है एग्जिस्टेंस. नाइस. एनिमल एल्स? एडजेक्टिव पे जोर दे रहे हैं या फिर एग्जिस्टेंस? यस, आई एम सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ दीपमाला जी. यहाँ पर एग्जिस्टेंस पे जोर दिया जा रहा है कि एक रेस्टोरेंट की बात की जा रही है जो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, वो अच्छा है. बिल्कुल सही बात. अगर ये सेंटेंस इतना होता, मतलब रेस्टोरेंट तक होता, मतलब नॉट फार ये सब नहीं होता, तो क्या करते? तो प्रायोरिटी किसको जाती? तो वेरी गुड को प्रायोरिटी जाती है, एग्जिस्टेंस को जाती है? बताइएगा जल्दी से. जनरली किसको जाती है? हालांकि यहाँ पर दोनों पॉसिबल हो सकता है, प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं. एडजेक्टिव. करेक्ट. एडजेक्टिव. होम. होम की तो बात ही नहीं हो रही है. होम मतलब एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं. यस. ध्यान देंगे मेरी बात पे. इस वाले केस में आपका जैसे आंसर तो आपके दोनों ही करेक्ट होंगे. जैसे मैं अभी इतना आधा कर रहा हूँ केवल. जैसे मैंने बोला इट इज अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, यहां तक, या मैं बोलूं देर इज अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, दोनों ही करेक्ट हैं. लिसन टू मी, दोनों ही करेक्ट हैं. बट अब देखिएगा मेरी बात को ध्यान समझिएगा. अगर आप एग्जिस्टेंस पर जोर दे रहे होते तो देर करेक्ट होता. लेकिन जनरली हम बोलते हैं ना कि जैसे बैठे हैं रेस्टोरेंट में और हम खा रहे हैं खाना, कुछ खा रहे हैं, तो हम बोलेंगे इट इज अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, इट इज अ वेरी गुड रेस्टोरेंट. तो वहां पर क्या है? आप वहां बैठे हुए हैं और आप मान लीजिए घर पे बैठे हैं, आप बोलते हैं पास में यहीं पे देयर इज अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, तो वहां पर जोर दे रहे हैं एग्जिस्टेंस पर. तो यहाँ पे ऑलरेडी हिंट दिया हुआ था, तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं थी. नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, इसलिए यहाँ पर देर का यूज हो. हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि अगर नॉट फार फ्रॉम माई हाउस नहीं होता तो आप यहाँ पर इट का यूज भी कर सकते थे. उस वाले केस में दोनों ही करेक्ट हो जाए. ठीक है. यस, आई एग्री कि एडजेक्टिव दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है, बट यहाँ पर हमारा जो जोर हम दे रहे हैं वो एडजेक्टिव पर नहीं दे रहे हैं, हम किस पे दे रहे हैं? एग्जिस्टेंस पर दे रहे हैं. ठीक है. रेस्टोरेंट है जो हमारे घर से ज्यादा दूर, तो देयर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा. तो देयर जिन्होंने किया है दे आर डूइंग वेल. जिन्होंने इट किया है वो एक अनदर सेंस है, बट यहाँ पर नहीं हो सकता. अगर हाँ आधा सेंटेंस होगा, नॉट ये वाला हटा दें, तो उसके बाद आपका ये इट पॉसिबल हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट. हेलो मम. नाउ टेल मी. तो रिपीट हो गया. थर्ड और फिफ्थ बोथ आर रिजेंबलिंग. यस, इट इज. इट इज मी. इट. इट इज करेक्ट आंसर. रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं. थर्ड में भी यही था और फिफ्थ में भी वही यूज कर लेंगे. नेक्स्ट. अब बताएंगे यहाँ पर इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम या देर इज अ प्रॉब्लम विद माई लैपटॉप, कैन यू हेल्प मी? बताएंगे यहाँ पर. लेट मी नो. देयर इज अ प्रॉब्लम. राइट. प्रॉब्लम की एग्जिस्टेंस की बात हो गई. लैपटॉप में एक समस्या है भाई. लैपटॉप में समस्या, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद माई लैपटॉप. ये नहीं बोलेंगे इट इज अ प्रॉब्लम विद माई लैपटॉप. हाँ, ऐसा आता है, इट्स अ प्रॉब्लम, ये एक समस्या है, वो अलग केस है. यहाँ पर हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? देयर इज अ प्रॉब्लम विद माई लैपटॉप. और एक बात और बताना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग बात. भले ही लोग करते हैं यूज इट्स अ प्रॉब्लम, हाँ यूज होता है लैंग्वेज में, दैट्स करेक्ट. बट जब भी आपको इस तरह के एग्जिस्टेंशियल सेंटेंस बनाने हैं, तो वहां पर आप देर का ही यूज करें फर्स्ट प्रायोरिटी में. तो आप इसको ऐसे ही बोलते हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम. क्या है? एक समस्या है. देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना. कोई है, देयर इज समवन, राइट. ओके. देयर इज समवन आउटसाइड, कोई बाहर है ना. अ काउ इज देयर ऑन द रोड, या देयर इज अ काउ ऑन द रोड.
हाँ, ये चीज भी इंटरेस्टिंग है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इट का यूज तो आप स्टार्टिंग में करते हैं, जैसे इट इज रेनिंग, रेनिंग इट इज नहीं करते, ठीक है, इट इज रेनिंग करते हैं। बट देयर का यूज आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, देयर इज अ काउ ऑन द रोड, करेक्ट है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, अ काउ इज देयर ऑन द रोड, ठीक है, देयर इज अ काउ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, अ काउ इज देयर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस चीज को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अ काउ इज देयर भी, इसका भी मतलब वही है कि गाय है, और देयर इज अ काउ, इसका भी मतलब है कि गाय है। एक बात और याद रखेंगे, देयर का हिंदी अर्थ वहां भी होता है। तो कभी पूछा जाए गाय वहां है, तो इसकी इंग्लिश भी यही बनेगी, अ काउ इज देयर, गाय वहां है, अ काउ इज देयर। बट देयर इज अ काउ, इसका जनरली हिंदी यही होगा, एक गाय, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हिंदी वहां होती है देर की, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं वहां एक गाय है, देर इज अ काउ, सिंपल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देर की हिंदी वहां भी होती है, और अगर नहीं है, एग्जिस्टेंस में सीधी बात कर रहे हैं, तो देर लग जाएगा, और दोनों तरफ से लग जाएगा, ठीक है? आगे अब बताएंगे, देर इज कोल्ड आउटसाइड या फिर इट्स कोल्ड आउटसाइड। इट इज कोल्ड, देर इज कोल्ड, मौसम की बात हो रही है, ध्यान देंगे, मौसम के मिजाज के बारे में बात की जा रही है। सर आई हैव डाउट्स इन द सेम स्टेटमेंट 7 ओके, यू हैव डाउट, यू कैन आस्क बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ, हेलो आस्क दीपाला जी। सर, जो स्टेटमेंट सेवन है सर, उसमें मतलब इट और देयर में कंफ्यूजन हो रहा है सर। लाइक आपने कहा कि अगर वेदर की बात करते हैं तो वहां पे इट्स आता है, इट इज आता है। यस, और अभी हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इट मीन्स आउटसाइड, तो वहाँ उस नो नो सेंस नो, में देयर लिसन, आ रहा है। लिसन लिसन, एग्जिस्टेंस आउटसाइड, ये वेदर की ही बात हो रही है। कल एक सेंटेंस आया था, उसमें थोड़ा सा दो बने थे, आपने कल क्लास ली थी ना, डिड यू टेक यस सर, क्लास यस सर, यस्टरडे? यस। एक सेंटेंस आया था, यस सर। कि मौसम में नमी है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, मौसम में नमी है, यहाँ पर एग्जिस्टेंस में हम इसको ले रहे हैं कि वेदर में क्या है, मतलब आर्द्रता बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, नमी है, तो उसको बोलते हैं देर इज ए ह्यूमिडिटी इन द वेदर, ठीक, करेक्ट है हमारा, क्योंकि यहाँ पर हम एग्जिस्टेंशियली हम यहाँ पे बात कर रहे थे। लेकिन अगर मैं बोलूं मौसम नम है या फिर मौसम आर्द्र है, तो वहां पे क्या बोलेंगे, इट इज ह्यूमिड वेदर। ध्यान दीजिएगा दोनों पे। अब यहाँ पर आपने कहा आउटसाइड आ गया, तो यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल है, ऐसा आपको लग रहा है, ध्यान से सुनेंगे। आप कमरे के अंदर में है, मौसम अलग है, मतलब आपका यहाँ पर जो उसका जो वातावरण है, एटमोस्फेयर है, वहां पर हो सकता है आर्टिफिशियली आपने बना रखा है एटमोस्फेयर अपना, लेकिन बाहर जाते हैं तो मौसम खराब है, तो वहां पर बात तो मौसम की कर रहे हैं। हाँ, अगर आप बोलेंगे इस तरह से कि एग्जिस्टेंशियल, जैसे यहाँ पे ह्यूमिडिटी आ गया, तो उस सेंस में आपका हो सकता है सही। बट यहाँ पर जनरल वे में हम किसको एम्फोसाइज कर रहे हैं, हम यहाँ मौसम को ही एम्फोसाइज कर रहे हैं, और मौसम को एम्फोसाइज कर रहे हैं जनरल वे में, तो यहाँ पर एग्जिस्टेंशियली लेंगे नहीं, हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे इट को। देर इज कोल्ड आउटसाइड, हो सकता है अगर आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, आप एक लोकेशन पर दे रहे हैं कि हाँ, लोकेशन वाइज आप कर रहे हैं तो ठीक है, बट इट्स कोल्ड आउटसाइड, ये इसलिए क्योंकि हमने मौसम को डायरेक्टली लिया है अपने स्टेटमेंट, है ना, इट्स हॉट आउटसाइड। जैसे रूम में बैठे रहते हैं ना, गर्मी है, सबके लिए गर्मी है, आप ऐसे ही बोल देंगे इट्स हॉट। लेकिन अगर आप एम्फोसाइज करके बताना चाहें कि हाँ देखो भाई, हॉट है लेकिन यहाँ पर नहीं लग रही गर्मी, आप बाहर निकलोगे तो वहाँ मौसम का हाल ऐसा है कि इट्स हॉट आउटसाइड, करेक्ट है, ठीक है। देर इज हॉट आउटसाइड की जगह पर प्रायोरिटी किसको देंगे, या फिर देर इज कोल्ड, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, कोल्ड हॉट कुछ भी हो, प्रायोरिटी देंगे इट को। रीजन क्या, रीजन ये है कि वहां पर भी वेदर की ही बात हो रही है, ठीक है। हाँ, एग्जिस्टेंस की बात इस तरह से होती है, जब हम जैसे अभी ह्यूमिडिटी वाला एग्जांपल दिया, तो वहां पर बात हो जाएगी, देर इज कोल्ड आउटसाइड, आपका सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। हम यहाँ पर कहना चाहेंगे जो हमारा करेक्ट होगा वो इट ही होगा। रीजन ये है कि यहाँ पर सीधी सीधी बात हुई है मौसम के बारे में। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है, यहाँ कोल्ड और हॉट, ये सब आपका एज एडजेक्टिव भी हम यूज कर ले रहे हैं, तो वो वाला केस भी आपका यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और एक बात बताना चाहेंगे, कोल्ड जो है, एक बार कोल्ड को सर्च कीजिएगा, कोल्ड इज एडजेक्टिव और एडवर्ब भी होता है शायद, नाउन, हाँ, यहाँ पर आप ये यूज कर सकते हैं, देखिए ये नाउन भी है, ठीक है। जहां पर आपका केवल एडजेक्टिव होगा, वहां पर तो केवल 100% पॉसिबिलिटी है
कि हम इट के साथ ही जाएंगे। यहाँ पर कोल्ड आपका नाउन है, इसलिए देयर का यूज हो सकता है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हम मौसम के बेस पे देना चाहें तो हम इट को ही देंगे। ठीक है। कोल्ड वाले केस में आप देयर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाउन है कोल्ड, और इसको आप एम्फसाइज कर सकते हैं इस तरह से कि हाँ एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो ठंड है बाहर भाई, इसलिए बाहर मत जाओ। तो वो आपका सही हो जाएगा, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमने इट को इसलिए भी दिया था क्योंकि यहाँ पर वेदर के ही कंडीशन की बात हो रही है। इट्स कोल्ड, कोल्ड को कोल्ड बोलते हैं, बट हॉट जो है आपका, हॉट आपका केवल और केवल एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। ठीक है। तो वहां पर आप नहीं कर सकते। सर, हेलो ओके। सर। यस। सर एक और डाउट है सर, जैसे इसमें लिखा है इट इज कोल्ड आउटसाइड, ओके, इसमें कोल्ड पे मतलब ये एडजेक्ट यहाँ पे हमारा वेदर का एडजेक्टिव, दिया है। हाँ अगर अगर एडजेक्टिव यहाँ के रूप में ले रहे हैं पे, तो आपका यस, इट्स, हाँ। यस सर, अगर यहाँ पे दिया है इज कोल्ड इन मसूरी या इट्स लाइक हिल स्टेशन, तो वहां पे क्या आएगा, देयर या इट इज कोल्ड इन मसूरी या यस यस यस, यहाँ पर आपने पर्टिकुलरली लोकेशन की बात कर ली, तो अब आप वहां पर बाहर नहीं है, और आप देख चुके हैं कोल्ड यहाँ पर एक तरह से नाउन भी है, तो वहां पर आप देर का यूज कर लीजिए, क्योंकि वहां पर पर्टिकुलरली आपने एनवायरमेंटली एक सिचुएशन की बात की है जो वहां पे एग्जिस्ट करती है। आप अभी यहाँ पे बैठे हैं और आप बात कर रहे हैं वहां की, तो उस केस में आप अ, देर का ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि वहां पर एक कंडीशन ये है एग्जिस्टेंस की, आप वहां पे बात कर रहे हैं कि भाई वहां पर ऐसा है, और हम यहाँ पर इसको फील कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल दिया इट इज कोल्ड या इट्स हॉट। ठीक है। और अब एक रीजन और बता दिया यहाँ पे, एक रीजन क्या है, कोल्ड नाउन है इसलिए भी देर का यूज हो पा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर कोल्ड की जगह हॉट होता ना, इट्स हॉट आउटसाइड, तो वहां पर इट ही आता। अब जैसे मान लीजिए कोई और लोकेशन ले लेंगे, तो देर इज हॉट इन राजस्थान, ऐसे नहीं बोल सकते हम, है ना। तो क्योंकि हॉट हमारा है वो एडवर्ब होता है या तो एडजेक्टिव होता है, इसलिए हम हॉट को नहीं ले सकते, क्योंकि दूसरा रूल लग जाएगा वहां पर। दूसरा रूल क्या है, इट के साथ हम यूज करते हैं एडजेक्टिव, राइट। ओके। तो इस तरह से ले लेंगे जनरली, हॉट का यूज हम करते हैं एडजेक्टिव के रूप में, और एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हीट, जिसको ऊष्मा के रूप में लेते हैं। ठीक है। तो उस तरह से यूज कर सकते हैं। एक बार हॉट को भी देखिएगा, हॉट का कहीं कहीं पे यूज आपका जनरली एडजेक्टिव के रूप में होता है, एक बार देख लीजिएगा कि नाउन है, नाउन नहीं है हॉट। ठीक है। तो दैट इज द रीजन। कोल्ड वाले केस में आपका ये नाउन था, इसलिए भी हमने देर का यूज कर दिया। और एक बात आपने ये बता दी, आप एम्फेसाइज कर दिया कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। ऑल राइट दीपमाला जी। यस। नेक्स्ट आपका है एट स्टेटमेंट, बताएंगे इट इज 2 o'clock या देर इज 2 o'clock। इट इज 2 o'clock और देर इज 2 o'clock। एक चीज मुझे और याद आई है यहाँ पे, कोल्ड में एक मौसम होते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमने ह्यूमिडिटी में बोला था, नमी, मौसम में नमी है। नमी क्या है, वो हमने पर्टिकुलर नाउन बना दिया। कोल्ड को अगर हिंदी में लेना चाहें तो एक हो रहा है ठंड, मौसम ठंडा है, ऐसा ठंड, ठंड है भाई, तो इट्स कोल्ड, ठंडा है मौसम। मौसम में और गर्मी है तो हम बोलते हैं इट्स हॉट, है ना। ऐसे ही मैं बोलूँ सर्दी, सर्दी है, और सर्दी को हम emphasize कर रहे हैं कि वहां बहुत सर्दी है, तो वह ऐसे ही यहाँ पर देर इज कोल्ड आ जाएगा। एक क्या किया आपने, क्योंकि कोल्ड दोनों ही वे में लिया जा सकता है, ऐसा नहीं। जैसे ह्यूमिड वाला एग्जांपल मुझे अच्छा लगा था, ह्यूमिड क्या है, अपने आप में वो एडजेक्टिव है, और ह्यूमिडिटी नाउन है, तो हमने ह्यूमिड लगाया तो इट लगा दिया, ह्यूमिडिटी लगाया तो देर लगा दिया। लेकिन कोल्ड दोनों ही है, इस बार इसलिए यहाँ पर दोनों पॉसिबल है। आई होप आप समझ पाए होंगे, एक होता है ठंड, ठंडा होना, माहौल ठंडा होना, और एक होता है सर्दी होना, है ना? सर्दी क्या है, एक मौसम का नाम है, तो वो नाउन के रूप में आ जाता है, जो कि नेम ऑफ थिंग्स बात करते हैं तो नाउन। तो ये आपने किया 2 o'clock में, यस दैट्स करेक्ट, यहाँ पे इट आए। नेक्स्ट लेंगे अ फ्लाई इन माई सूप, एक मक्खी है मेरे सूप में। इट इज अ फ्लाई या फिर देर इज अ फ्लाई। यस। हम्म।
बताएंगे जल्दी से। देर हो गया, इट हो गया। सूप में मक्खी, इट इज। इसमें भी डाउट है, इसमें भी डाउट है, फ्लाई वाले में। यस दीपमाला जी आस्क। इट इज अ फ्लाई, देयर इज अ फ्लाई, इसमें डाउट है। यस आस्क। यस सर। इट इज एंड देयर इज क्या आएगा सर इसमें, क्योंकि एक आप बोल रहे हो जैसे फ्लाई है, हाँ। तो ये सर नाउन हो गया। हाँ, नाउन है। और सूप, मतलब यहाँ पे आप किसी चीज को रिजेम्बलेंस कर रहे हो, यहाँ पे रिजेम्बल कर रहे हो। सूप कोई चीज है हमारे पास, सूप जिसमें हम सूप पीते हैं तो उसमें हमारा फ्लाई गिरा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो वो क्या बात हो रही है यहाँ पर, एग्जिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, सोचिए। तो मतलब सर सूप। फोकस तो उसमें फ्लाई। हाँ फ्लाई पे है, और फ्लाई की तो एग्जिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। फ्लाई वहां पर है, मौजूद है। मतलब सूप, सूप में आपके फ्लाई है, तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस की तो बात हो रही है कि हाँ है फ्लाई वहाँ, मतलब मक्खी है सूप में। ओके, तो देयर इज आएगा। हाँ, एग्जिस्टेंशियल में हम देखते हैं उसको, यहाँ पे तो इट कैसे भी नहीं। ओके। अब बताएंगे, देयर इज या फिर इट इज अ बॉय वॉकिंग फास्ट इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने एक लड़का तेज तेज चल रहा है, टहल रहा है, बढ़ रहा है। यस दैट्स करेक्ट। वेल डन। तो यहाँ पर भी हम बॉय, बॉय एग्जिस्टेंस की बात हो रही है कि एक लड़का है, मौजूद है, जो चल रहा है मेरे सामने तेज तेज, तो देर आ जाएगा, करेक्ट। वेल डन। ओके। अब आते हैं ये हमारा जो फोर्थ एक्सरसाइज पे। फोर्थ एक्सरसाइज में बताएंगे, दे, देयर आर, ये सब आपको बताना है कि इसको, या फिर देयर इज ना, या फिर इट इज, सब मिक्स में आ गया है। तो यहाँ बताइए फर्स्ट वाले में, मैनी मीटिंग रूम्स बट आर ऑफन ऑक्यूपाइड। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप समझ पाए हैं तो। यस। यस। वेल डन। आप यहाँ पे कर पा रहे हैं, बताएंगे सभी लोग बताएंगे। फर्स्ट वाले में क्या आएगा, फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी। फर्स्ट में ए, ए जो ए पार्ट में, ये इस पार्ट को बोल रहा हूँ, मैनी मीटिंग रूम्स, और यहाँ पर क्या आना चाहिए। ध्यान देंगे ये जो ऑप्शन लिखे हैं इसमें से, देयर इज भी हो सकता है, देयर आर भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, और इट इज भी हो सकता है, ध्यान देंगे ठीक है। और हाँ, दे के साथ आर भी हो सकता है, ये बात याद रखना। और आर तो लगा ही है। ठीक है, देयर इज नहीं होगा, देयर इज नहीं होगा, देयर आर ऑप्शन दे रखा होगा, देयर आर आना चाहिए, क्यों। मैनी 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 मीटिंग रूम्स, तो मैनी मीटिंग रूम्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है ना। तो देयर आर, जिन्होंने किया है, देयर आर मैनी मीटिंग रूम्स इन द बिल्डिंग बट दे आर ऑफन ऑक्यूपाइड, दैट्स करेक्ट। ठीक है। सेकंड आपका है, इसको बताएंगे, इफ दैट्स अ प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर प्लीज लेट मी नो। ऑप्शन ऊपर दे रखा है, देयर इज, देयर आर, दे, और इट इज। अभी ये प्रीवियस स्लाइड में भी हमने एक ऑप्शन आया था वैसा ही, सेम टू सेम वही क्वेश्चन हो गया एक तरह से देखेंगे तो। ठीक है, प्रॉब्लम वाली मैंने बताया भी था, साइज भी किया था। तो यहां पर हम लेंगे देयर, जिन्होंने देयर किया है वो आपका सही है। अच्छा, एक प्रॉब्लम से ही एक एडजेक्टिव बनता है, प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, प्रॉब्लमैटिक अगर आपने सुना हो तो, मतलब समस्यागत ऐसा बोलते हैं शायद उसको। तो प्रॉब्लमैटिक मतलब होता है समस्यात्मक या समस्यागत। अगर मैं बोलूं कोई चीज, डैश इज अ प्रॉब्लमैटिक मैटर, यह एक समस्यागत मुद्दा है या समस्यात्मक मुद्दा है, तो वहां पर क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे या देयर लगाएंगे, बताएंगे जरा। प्रॉब्लमैटिक। यस, प्रॉब्लमैटिक में क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि वहां पर वो एडजेक्टिव बना दिया मुझे। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान, नहीं दीपमाला जी कंफ्यूज हो गई ये। प्रॉब्लमैटिक में आपका, प्रॉब्लमैटिक बताया ना एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम आपका, ठीक है, प्रॉब्लम था तो वहां पर नाउन था। प्रॉब्लमैटिक मैंने बोला समस्यात्मक, समस्यागत, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के साथ क्या लगाते हैं, इट बताया था ना, इट्स अ गुड थिंग, इट्स नाइस, इट्स ब्यूटीफुल, ये सब बताया था, तो ध्यान देंगे इसको। प्रॉब्लमैटिक आपका एडजेक्टिव, हाँ प्रॉब्लम होता तो आप देर लगाते। मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, लोग इस तरह से यूज भी करते हैं, इट्स अ प्रॉब्लम, है ना, इट इज अ प्रॉब्लम ऐसे भी बोल देते हैं।
बट हम याद रखेंगे, हम जब ऐसे एग्जिस्टेंशियल बात करते हैं तो इट इज का यूज ना करके देयर करते हैं। देयर इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम की जगह पे क्या बोलना है, देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना। या इट्स अ प्रॉब्लमैटिक कंडीशन, अगर इट बोलना ही है, इट इज बोलना ही है, तो प्रॉब्लमैटिक लगा कर कोई कंडीशन या कोई दूसरा वर्ड नाउन यूज कीजिए, ठीक है, वहां पर आपका ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बताएंगे, लुक, क्या आएगा यहाँ पर, देयर इज आएगा, देयर आर आएगा, फर्स्ट ए क्या आएगा, और या इट इज आएगा। क्लॉक ऑन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में, ऑन दैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग पर, मे की बात यहाँ पे कर लेंगे, कहीं तो होगा ऊपर ही लगा हुआ खुला बिल्डिंग को होगा। उस बिल्डिंग में क्या है, एक क्लॉक है, घड़ी है, ठीक है। तो आपने पहले का बताया देयर इज, अच्छा जी, इसमें क्या होगा, ए का बी, सॉरी थ्री का बी, टाइम दे रखा है, इसमें क्या करेंगे टाइम में, यस, यस, दे तो हो ही नहीं सकता, दे अ क्लॉक हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जो आप लोग आंसर कर रहे हैं, लुक देयर इज अ क्लॉक, एग्जिस्टेंस की बात हुई है, घड़ी की, घड़ी है वहां पर, ये टाइम नहीं है, याद रखेंगे। ये घड़ी, घड़ी जो होती है ना फिजिकल, उसकी बात हो रही है। एक घड़ी है उस बिल्डिंग में, और इट्स यहाँ पर टाइम दे रखा है 1:15, यहाँ पर इट इज आ जाएगा, इट इज वाला इट्स, है ना। नेक्स्ट फोर्थ है आपका, कॉमन नॉलेज दैट एल्कोहल, एल्कोहल कैन कॉज बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स। बताइए यहाँ पर क्या आएगा, कॉमन, कॉमन नॉलेज, आम ज्ञान या सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान की बात है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, समझेंगे और आंसर करेंगे। कॉमन नॉलेज लिया गया है, कहा गया कि ये एक सामान्य ज्ञान है, दैट अल्कोहल कैन कॉज बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स। सबसे पहली बात यहाँ पर ये कॉमन जो है आपका एडजेक्टिव है, और एग्जिस्टेंस की बात तो यहाँ पर नहीं हो रही, जनरली नॉलेज एक तरह से हम उसको क्या लेते हैं, दिस इज हाइपोथेटिकल थिंग विच इज रिलेटेड टू ब्रेन, है ना। और देर इज नॉलेज अगर वो होता तो हम कह देते देर इज नॉलेज, ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा यहाँ पहली बात। तो यहाँ पर सबको बेटर तरीका क्या है, इट का लगेगा, कितने लोगों ने इट किया है, जिन लोगों ने इट किया है उनका सही है, इट इज। क्यों, सबसे पहली बात यहाँ पर एडजेक्टिव दे रखा था जो आपको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि आपको यहाँ पर इट लगाना है, और कुछ ऐसा एग्जिस्टेंशियल बात हुई नहीं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस विच इज विजिटेड बाई मैनी ऑफ द पीपुल अराउंड द वर्ल्ड, है ना। तो वहां पर देर इज ब्यूटीफुल प्लेस नहीं बोल करके इट इज ब्यूटीफुल प्लेस ज्यादा बोला हमने, क्यों, वहां पर हम खड़े हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत सुंदर जगह है। तो इट इज सही हो गया। फिफ्थ वाला देखेंगे, पॉसिबल, फिर से बताएंगे आप लोग, दैट वी आर किलिंग द प्लेनेट विथ पॉल्यूशन, बताएंगे, देर इज, देर आर, दे, इट इज, यस। कैसे पता किया, पॉसिबल में इट इज लगेगा, आपने पता किया पॉसिबल में आपने एडजेक्टिव। नेक्स्ट आपका सिक्स है, टू मोर आइटम्स दैट, टू मोर आइटम्स आ गया, इसी को देखकर करेंगे तब भी कर लेंगे। आई वुड लाइक टू ऐड टू द मीटिंग एजेंडा, बताएंगे जल्दी से, टू मोर आइटम्स, देर इज नहीं आ सकता, टू मोर आइटम्स, आइटम्स प्लूरल है ये, कैसे इज आ जाएगा, यस, देर आर इज करेक्ट आंसर। सेवंथ में आपका बताएंगे जल्दी से, मीटिंग आपकी ऑफ होने वाली है, दूसरे ज्वाइन कर दीजिएगा। सेवंथ का आंसर बता देता हूँ, सेवरल न्यू प्रॉब्लम्स है, तो देयर आर हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल बात हो रही है प्रॉब्लम्स के बारे में। ये देखिए यहाँ पे नाउन है ना, प्रॉब्लम्स एडजेक्टिव नहीं है, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा, दे विल इन्वॉल्व द ट्रेनिंग ऑफ न्यू स्टाफ, यहाँ पर केवल एक में आया है दे, वे इन्वॉल्व करेंगे ट्रेनिंग ऑफ न्यू स्टाफ, नए स्टाफ की ट्रेनिंग, विल सून बी लुकिंग, सो दैट्स इट। अब आप लोग दूसरी मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, ओके, विल बी टॉकिंग अनदर कॉन्सेप्ट, दूसरा ज्वाइन कर लीजिएगा।